Hello students, as you know that the NEET paper is over and students are waiting for the final answer key which is released by the NTA. Today I am trying to solve the biology paper of NEET exam. So the difficulty level of exam was, question paper was moderate and maximum questions are asked from the NCERT, even from the single paragraph of NCERT. From the morphology section, 2 questions are asked. So, NEET again proved that NCERT is the backbone of this competitive exam. Not only NEET, for other exams also, NEET or other exams, other competitive exams, NCERT books are best. So, you have to learn thoroughly the NCERT books and memorize all the examples which are given in the chapter. So, I am starting from the first question of this booklet. So, I have not a booklet number because I have I got pictures of the question paper from one of my student. So, I think it is set H4. So, the first question is, which of the following is not an attribute of population? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या क्या नहीं होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, नैटलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो यहाँ पर स्पेसीज इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होता है, ना कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है. सो एक इसका ऑप्शन स्पेसीज इंट्रैक्शन है. सो सेक्स रेशियो, नैटलिटी, मोर्टेलिटी इज द फीचर ऑफ पॉपुलेशन. सो आंसर इज स्पेसीज इंट्रैक्शन. Second is, which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? Option is activated sludge, primary sludge, floating debris, effluent of primary treatment. No, answer is activated sludge. The roots that originated from the base of the stem are, obvious answer will be fibrous root, directly from the NCERT line. Fibrous root arises from the base of stem. When radical is degenerated, then fibrous root arises from the base of the stem, given in the NCERT. So answer is fibrous root. Fluoridine starch is similar to the glycogen and amylopectin. So answer is given amylopectin and glycogen. So answer is amylopectin and glycogen. Dissolution of the synaptogenic complex occurs during, synaptogenic complex forms during zygote stage and during diploid stage it is dissolved. So option is lactotin, pectin, zygotin and diplotin. So answer is diplotin. Next, identify the correct statement with reference to human digestive system. Option is vermiform appendix arises from duodenum, wrong. Ileum opens into small intestine, wrong. Ileum opens in large intestine, it opens in cecum. Serosa is the inner, serosa is the outermost, so it is wrong. Ileum is highly coiled, right answer. Next is, match the following columns and select the correct options. First is eosinophils, basophils, neutrophils, lymphocytes, column 1, and in column 2, immune response, phagocytosis, release histamine, destructive enzymes, release granules containing histamine. So if you know one answer, neutrophil are phagocytic, तो ऑप्शन सी का सेकेंड सिर्फ एक में दिया. अगर आप एक सिंपल सा भी आंसर जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं. इस बार क्वेश्चन में यही इजी है कि ऑप्शन को बहुत वेग नहीं बनाया गया. बहुत बार होता है कि जो आप जानते हैं, जो कॉमन है, वो हर ऑप्शन में रहता है, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन होती है. लेकिन इस बार बहुत आसान है, ऑप्शन पर बहुत वर्क नहीं किया गया या थोड़ा सिंपल किया गया पैटर्न, और यहाँ पर एक भी अगर आप जानते हैं तो आपका सही हो जाता है. आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर इओसिनोफिल्स हमारे पास, रिलीज हिस्टामिन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स. सेकेंड हमारे पास होगा बेसोफिल्स हमारे पास, फर्स्ट इओसिनोफिल्स हमारे पास क्या होगा? रिलीज हिस्टामिन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स. बेसोफिल हमारे पास होगा रिलीज ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन्स, एंड न्यूट्रोफिल हमारे पास होगा फेगोसाइटोसिस, एंड डी हमारे पास लिम्फोसाइट्स होगा इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये ऑप्शन सेकेंड राइट होगा. नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन.
बीटी कॉटन, एड्रेनालिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, RNAi, PCR। और सेकेंड में दिया है जीन थेरेपी, सेल्यूलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, बैसिलस thuringiensis। सो बीटी कॉटन का आंसर बैसिलस thuringiensis होता है। तो 1 का 4 पहले देख लेते हैं, 1 का 4 कितने ऑप्शन में, किसी में नहीं है। एक भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। तो 1 का 4 आपका सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis है बैक्टीरियम। सेकेंड है हमारे पास एडिनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी में यूज होता है। RNAi सेल्यूलर डिफेंस के लिए यूज होता है। और PCR हमारे पास डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन में यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ऑप्शन इज इन्यूलिन एंड इंसुलिन, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड इज काइटिन, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते। ग्लाइसरॉल में फैट है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। सेल्यूलोज, लेसिथिन दोनों कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, फर्स्ट आंसर होगा इन्यूलिन एंड इंसुलिन, क्योंकि इसी में एक आपका कार्बोहाइड्रेट है और एक आपका प्रोटीन है। सो आंसर इन्यूलिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में से किस ऑप्शन में है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हार्पिस। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सब में कैंसर, एड्स, सिफिलिस है, गलत है। गोनोरिया, मलेरिया गलत है। एड्स, मलेरिया गलत है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हार्पिस। तो ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। RNA पॉलीमरेज। आंसर विल बी RNA पॉलीमरेज। हेलिकेज DNA हेलिक्स को ओपन करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। And question is transcription, so RNA polymerase. Which of the following is correct about viroids? Viroids NCERT का डायरेक्ट लाइन है, free RNA without protein coat is viroids. So option is they have free RNA without protein coat. Third, according to this set, they have free RNA without protein coat एकदम डायरेक्ट NCERT लाइन है। Match the following. Inhibitor of catalytic activity possesses peptide bond cell wall material in fungi, secondary metabolite। और इधर ऑप्शन है आपका रेसिन, मेलोनेट, किटिन, कोलेजन। सो इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट, possesses peptide bond, कोलेजन, cell wall material in fungi, काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, रेसिन। अगर आप सारे जानते हैं तो भी सब हो सकता है, अगर आप एक भी जानते हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लियर है। अगर आपने बहुत इजी देखा होगा, सेल वॉल मटेरियल इन फंगस काइटिन होता है, अगर ये भी आप जानते हैं तो सी का ऑप्शन 3 सिर्फ एक में है, ये भी बन सकता है। कोई भी एक अगर आप जानते हैं तो आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं, इसलिए टाइम टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू assist those females who cannot conceive। 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल में। एम्ब्रियो ट्रांसफर कब होगा? जिफ्ट, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसमें दिया है GIFT एंड ICSI। ICSI में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, गैमेट को ट्रांसफर करते हैं, ना कि एम्ब्रियो या जाइगोट को। गिफ्ट और जिफ्ट, गिफ्ट में भी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को हम हार्वेस्ट करके डालते हैं। ICSI एंड जिफ्ट, ये सब में से कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पर जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट 8 स्टेज में और या तो 8 to 32 स्टेज में इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करते हैं। आंसर इज सेकेंड, ZIFT एंड IUT। नेक्स्ट इज some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage, G0 स्टेज में एंटर कर जाता है। किस फेज के बाद? जीवन के बाद। जीवन के बाद अगर सही रहता है सारा कुछ तो हमारे पास एस फेज में जाता है, अदरवाइज उसको अरेस्ट करके हम लोग G0 फेज में डाल देते हैं, क्वेसेंट स्टेज में चला जाता है, जिसका आंसर होगा G1 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग।
CO2 gas is used as refrigerant for ice cream and frozen food. Correct statement choose करना. The structure of 660 contains 12 6 carbon compound and 25 carbon compound. ZSM5, a type of zeolite, is used to convert alcohols in gasoline. ये सही आंसर है. एंड CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. ये भी हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कोई ऑर्डर नहीं होता, इसलिए हम लोग इनहेल करते हैं, हमें पता नहीं चलता और सफोकेशन के कारण हमारा डेथ भी हो सकता है. सो आंसर इज C एंड D. ZSM5, a type of zeolite, and second CO is colorless and odorless gas. Match the following concerning essential elements and their functions in the plants. First is iron, zinc, boron, manganese. Second, photolysis of water, pollen grain germination, required for chlorophyll biosynthesis, IAA biosynthesis. एक भी अगर आपको आता है तो भी आंसर तक शायद आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर भी बोरोन, पॉलन जर्मिनेशन. सी का 2 नहीं, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है. सी का 2 ऑप्शन में सी का 2 है. तो जिंक क्लोरोफिल में यूज होता है, तो जिंक क्लोरोफिल कहाँ दिख रहा है? रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस. बी का 3 थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है. और साथ में बोरोन मैग्नीज यूज होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, तो डी का 1. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है. आयरन, इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस में, जिंक क्लोरोफिल सिंथेसिस में, बोरॉन पॉलन जर्मिनेशन में, मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में. पांचों ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्जीन प्रेजेंट होता है जेड एंजाइम में, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रासेस ब्लेड at night and in early morning. It is guttation, but in the answer guttation is not division. Cause of guttation is given, and the cause of guttation is root pressure. So answer will be root pressure. The body of the ovule is fused within the funicle at hilum. Raphe formation करता है. The body of ovule is fused with the funicle. कहाँ पर फ्यूज करता है? जहाँ पर हाइलम होता है. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम और हाइलस ना, तो हाइलम. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर्स विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग? 7 पेयर्स को सेलेक्ट किया था. 14 आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? In Urochordata and Notochord extend from the tail, head to tail. True statement है. Urochordata, Notochord extend from head to tail. गलत है. Urochordata में सिर्फ tail पर present होता है. In vertebrate, Notochord is present during embryonic period. ये सही है. Central nervous system is dorsal. ये भी सही है. Chordata is divided into subphylum Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata. ये गलत है. आंसर होगा हमारे पास B and C. The process of reaction catalyzed by nitrogenase in a root nodule of leguminous plant is ammonia and hydrogen. अमोनिया एंड हाइड्रोजन. ऐसे अमोनिया भी गिवन है, लेकिन अमोनिया ब्रेक करता है तो जो हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ के NH2, NH, NH2, NH3 का फॉर्मेशन करता है. सो आंसर विल बी अमोनिया एंड हाइड्रोजन. सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एक ही आंसर दिख रहा है सही, बाकी सारे आंसर्स गलत है. एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यही एक ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है. विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल? ऑब्वियस आंसर विल बी गोल्गी बॉडीज. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है, उसका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में गोल्गी बॉडी के अंदर. पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में यूज होता है ये. साथ में यहाँ पर सिस्टर्नी के अंदर इसका मॉडिफिकेशंस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन? याद हो गया होगा आपको सुन के. कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल ऑफ द बायोस्फीयर. The plant part which consists of 2 generations, one within the other. Seed obvious है, लेकिन यहाँ पर embryos है inside the ovule. Seed inside the fruit
एक ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, एम्ब्रियो सैक अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये भी सही लग रहा है। इसका ऑप्शन की आने पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर है सी एंड डी, सीड इनसाइड द फ्रूट एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक का कंडीशन मेंशन नहीं किया कि फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड, तो मे भी फर्टिलाइज्ड है तो ये भी आपका हो सकता है। सो आंसर इसका सी और डी होना चाहिए। Meiotic division of the secondary oocyte is completed at the time of fusion of sperm with the ovum। अभी आपने पढ़ा भी है तुरंत कि हमारे पास जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कर पाता है। बिना फर्टिलाइजेशन मतलब बिना स्पर्म की एंट्री के oocyte हमारे पास ऑलवेज मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड स्टेज में इंटरप्टेड रह जाता है। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, large number of scattered vascular bundle। Scattered vascular bundle is characteristic feature of monocot stem। Large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles are conjoint and closed, confirm monocot stem होगा। Goblet cells of alimentary canal are, it is modified columnar epithelial cells। I think it is columnar epithelium। I am slightly confused columnar or cuboidal, but sure columnar epithelium। Goblet cells of alimentary canal are modified columnar epithelial cells। The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as ORI site। यही डिसाइड करता है जितने ORI होंगे उतनी कॉपी नंबर होगी। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, organ of Corti, cochlea, eustachian tube, stapes। organ of Corti बेसिलर मेम्ब्रेन पर लाई करता है। ए का ऑप्शन 4, ए का ऑप्शन 4 सिर्फ एक में दिख रहा है, फोर्थ में ए का ऑप्शन 4 एक भी जानते हो गया। सेकेंड इज कॉक्लिया, सेकेंड कॉइल्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेवारियन, सही है। ऑस्टेशियन ट्यूब फर्स्ट, ऑस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स को मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है, ट्रू। स्टेप इज थर्ड अटैच टू द ओवल विंडो, सही है। तो एक भी जानते हैं तो सही है, चारों जानते हैं तो और बढ़िया। टाइम टेकिंग ऑप्शंस नहीं है इसलिए क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स आर डायरेक्टली एनसीईआरटी से गिवन है, मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, इंफेरियर ओवरी होता है रे फ्लोरेट्स। द QRS कॉम्प्लेक्स इज स्टैंडर्ड इज इजी रिप्रेजेंट्स, QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। Name of the plant growth regulator which upon spraying on sugar can crop increase the length of the stem की बढ़ रही है, जिब्रेलिन होगा, stem elongation के लिए responsible होता है। Which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic actions। ऑप्शन इज डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस, ये तो गलत है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीट, ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। आई थिंक इसका तीनों आंसर सही होना चाहिए, बी सी डी। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीट, ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी सी डी होना चाहिए। वेट करिए आंसर की का, वैसे यही आंसर इसका देना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय वॉन वेयर। वॉन वेयर ने हमारे बायोजेनेटिक लॉ को देकर के क्या प्रूव किया था, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट दिखाया था कि हमारे पास जनरल फीचर, जो स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं वो बाद में आते हैं, जनरल फीचर हमारे पास पहले बन जाता है। तो ये हमारे पास वॉन वेयर ने दिया था। ऑपरिन, अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन। एब्सर्ड आंसर है, सिर्फ एक ही आंसर इसमें दिख रहा है जो डिस्कार्ड कर सकता है और वो है हमारे पास वॉन वेयर। Which of the following pair is of unicellular alga, chlorella and spirulina? Unicellular alga, first option is right, unicellular algae। Which of the following statement about inclusion body is incorrect? इंक्लूजन बॉडीज में हम फूड को स्टोर करते हैं, पूछ रहा है इसमें से इनकरेक्ट कौन है। दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, सही है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, सही है।
दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, गलत है, क्योंकि फूड को उसमें स्टोर करेंगे तो वो डाइजेस्ट खा जाएगा उसको, तो कैसे स्टोर करेंगे। सो ये गलत है आंसर इसमें। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, दे लाई इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत है, दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस के प्रिवेंशन के लिए क्या यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, कोई इसका मतलब नहीं है, ये ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच के अंडर सेक्रेशन में वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, यस, ये आंसर इसका हो सकता है। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर तो हमारे पास वैसो रिलैक्सेसर, ये जब जेजी का एक्शन खत्म होता है तभी हमारा आता है, तो इसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड यही तो हमारे पास डाईयूरेसिस के लिए हो सकता है, लेकिन चूंकि सेकंड में अंडर सेक्रेशन ऑफ एडीएच अगर अधिक है तो हम रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अंडर सेक्रेशन है मतलब कम है, तो ये गलत है। थर्ड है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, तो वाटर और सोडियम इंक्रीज करेगा, ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वाटर भी एंटर करेगा ब्लड में, जिसके कारण डाईयूरेसिस प्रिवेंट हो जाएगी। तो आंसर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। करेक्ट मैच करना है हमें, और करेक्ट मैच में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो वेट, टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, मैं आती हूँ उधर। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट मैच, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, फिनाइल कीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। मैच करना है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, कौन सा सही है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड गलत है, हीमोफीलिया वाई लिंक्ड गलत है, फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये 12th क्रोमोसोम में डिफेक्ट से होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोमल 11, क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट होने से सिकल सेल एनीमिया, ये सही है। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी